अभी हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, scarcity, choice, why do problems arise, difference between microeconomics and macroeconomics, and difference between positive economics and normative economics. आगे की कहानी. Now what is an economy? अभी हम पढ़ रहे थे what is economics. अब बात हो रही है कि what is the meaning of an economy. इंडियन इकोनॉमी ने कौन सा सिस्टम चूज किया? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ी सी बातें सुनते हैं, बट जनरल. People perform different economic activities to earn their living. So economics is all about studying the human behavior as far as this aspect is concerned, earning their living. So earning their living is an important phrase for you, should be used while giving answers. Teachers go to school, doctors go to hospital, farmers go to their fields, and industrialists go to their industries. सब अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है earn their living. The nature and level of economic activities performed by the people of an area would reveal a system by which people of the area earn their living. Different activities through which people earn their living. This system is called economy. Economics is the study of human behavior as far as earning a living is concerned. Economy is the system where these people earn their living. Economy एक system को बोला जाता है जहां पे ये जैसे production भी, consumption भी, investment भी, ये सारे processes they take place. So economy is a system by which people of an area earn their living. तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एक सिस्टम को, पूरे सिस्टम को बोला जाता है जो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक सिंपल इकोनॉमी और एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. क्या होती है ये सिंपल इकोनॉमी? एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ is not capable of producing all the goods and services which he needs for the satisfaction of wants. सब कुछ आप खुद तो नहीं कर सकते. अगर मेरा काम है पढ़ाने का तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं कपड़े नहीं बना सकता, कपड़े कोई और बना रहा होगा, खाने का आइटम कोई और बना रहा होगा. सबके अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. बट मैं सर्विस रेंडर करके जो पैसे जनरेट करूंगा उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, उससे मैं अपनी बाकी वांट सेटिस्फाई कर सकता हूँ. He depends upon others. If you are a teacher, students depend upon you for their education. आपके जो एजुकेशन की नीड है वो यहाँ से फुलफिल हो जाएगी, बट भूख थोड़ी ना मिटेगी, उसके लिए तो कोई और ही आपकी वांट सेटिस्फाई करेगा. यस और नो? तो यू मतलब पहली बात, यू कांट बी सेल्फ डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग एंड यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन फॉर एवरीथिंग. तो सबका अपना अपना एक रोल रहता है. You on the other hand depend on a baker for the bread, a tailor for stitching your clothes, a maid servant for domestic help, and so on. Thus, mutual interdependence, keyword hai, mutual interdependence is the essence of economic activity. क्या mutual interdependence के बिना कोई इकोनॉमी सरवाइव कर सकती है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है सब. अगर आप मार्केट में पैसा खर्च करना ही बंद कर दो, क्या मार्केट में दुकानें सरवाइव कर पाएंगी? सबकी इंटरडिपेंडेंस है. अगर दुकान वाले सामान रखना बंद कर दें तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? नहीं. बात समझ आ रही है? तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. जरा हम ऑनलाइन ले लेंगे, वो भी तो एक मार्केट प्लेस ही है. मैं कह रहा हूँ मार्केट ही बंद हो जाए, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन. तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. Mutual interdependence, it leads to exchange of सर्व. मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मुझे पैसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक्सचेंज हो रहा है. एक्सचेंज, mutual interdependence leads to exchange. Accordingly, we can say that mutual interdependence and exchange are the core elements of an economy. So mutual interdependence, which will eventually lead to an exchange, they are the core elements of an economy. An economy is a system where exchange of goods and services takes place, where people earn their living. A simple economy is the one in which the degree of interdependence and exchange
इज ऑफ अ मॉडरेट डिग्री। एक सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी हो या सिंपल इकोनॉमी हो, एक्सचेंज तो होगा ही होगा, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस तो होगी ही होगी। वो कम है, मॉडरेट है तो एक सिंपल इकोनॉमी है, वो बहुत ज्यादा है तो एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। तो अंडर डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस, वो एक सिंपल इकोनॉमी की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनकम लेवल्स लो होते हैं। इनकम लेवल्स लो होते हैं ज्यादा, जैसे अगर चलो हम अपने आप को ही 50 साल पीछे ले जाएं और ज्यादा पीछे ले जाएं तो बार्टर सिस्टम तक भी पहुंच सकते हैं, यस और नो? तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होता होगा या ज्यादा होता होगा? गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा, बट पैसे एग्जिस्ट नहीं करते, पैसे एग्जिस्ट नहीं करते। ह्यूमन वांट्स कम होती होंगी या ज्यादा? जब आपके पास ज्यादा मीन्स ही नहीं है तो कम होती होंगी। तो सिंपल इकोनॉमी में अगर आपके मीन्स ही कम है तो एक्सचेंज कम होती होंगी या ज्यादा? समझ आई बात? बट अगर आपके इनकम लेवल हाई है तो आपके एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होंगे या ज्यादा? कंजम्पशन कम होगी या ज्यादा? सिंपल इकोनॉमी जहां पे ये सब कम है, लोगों के इनकम लेवल्स लो हैं, लोगों के नीड्स कम, डिजायर्स लो हैं, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मॉडरेट है। डिपेंड उसके बिना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप सब कुछ खुद तो कर नहीं सकते। अब जैसे क्या होता है गांव में, मतलब सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सब्सिस्टेंस की, वो खुद ही खाना बना रहे होते हैं, खुद ही काम कर रहे होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी ऑन अदर्स कम होती है ज्यादा? विलेज में कम होती है, ज्यादा से ज्यादा काम वो खुद ही कर लेते हैं। होती है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बट लो होती है, फिर मॉडरेट होती है, फिर हाई होती है। हम हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो तभी पॉसिबल है ना कि आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना देने के लिए दूसरों को, कि आप हर एक काम दूसरों से करा सको। बात समझ आ रही है? अ सिंपल इकोनॉमी is the one in which the degree of interdependence and exchange is of a moderate degree, not very high. A simple economy contrasts with a complex economy. Unlike a simple economy, the degree of interdependence and exchange in a complex economy is very high. क्या है features? Simple economy, income of the people, income level is low. Simple economy में, complex economy, income is high. Wants are multiple, but not enormous. Human wants will always be multiple, but enormous ऐसा नहीं कि unlimited नहीं बोल सकते, because जब ज्यादा मीन्स ही नहीं है तो अपने आप को आप लिमिट कर देते हैं जब लो लेवल ऑफ इनकम है, बट स्टिल दे आर नॉट इनॉर्मस. कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी वांट्स आर मल्टीपल as well as enormous, never ending. Mutual interdependence is limited, moderate. Complex economy में very high. Degree of exchange is again limited, moderate, because of low level of income. और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हाई. तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी किसकी होती है? डेवलप्ड इकोनॉमीज की. किसकी होती है? डेवलप्ड इकोनॉमीज की. और सिंपल इकोनॉमी किसकी होती है? अंडर डेवलप्ड. और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, उस रास्ते में है, इवेंचुअली पहुंच जाएंगे वहां पे, बट अभी रास्ते में, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं बोला जा सकता. अंडर डेवलप्ड सिंपल, डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स, डेवलपिंग सिंपल है, जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ. ओके, तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इकोनॉमी एंड अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी पता होना चाहिए. मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, one marker, exact definition. It is a system by which people of an area earn their living.